Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajodha student. Today I am taking the exercise number 4.3 of the chapter number 4, class 9 mathematics, question number 3, related to the linear equation in the two variable based on the graphical representation method. Today I am taking the question number 3. Firstly, question number 3, the demand of question: if the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y will be equal of ax plus 7, we have to find the value of a. Solution student, ठीक है, ध्यान से देखेंगे. गिवन इक्वेशन will be equal of 3y equal to ax plus 7, where points are 3, 4 such that x will be equal of 3 and y will be equal of 4. आप सोच रहे होंगे सर हमको भी बताइए, हमको एक इक्वेशन दी है 3y विल बी इक्वल ऑफ ax प्लस 7 और हमको सेटिस्फेक्शन के लिए पॉइंट दिया हुआ 3, 4, दैट मीन्स x. जब भी हम किसी भी कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो ब्रैकेट में हमेशा आएगा x, y सच दैट x will be equal of 3 and y will be equal of 4. We have to put the values of the x and y will be equal of 3 and 4 such that 3 into the value of the y will be equal of 4 equal to a. The value of x will be equal of 3 plus 7. Student, 3 4 jar 12 equal to 3a plus 7. We have to find the value of a. That means positive convert into the form of negative, then v will equal 3a plus minus 12 minus 7 will be equal of 5 equal to 3a. We have to find the value of a such that a will be equal of 5/3. Student, I hope you getting the proper solution. एक बार और समझा देता हूँ. If the point 3, 4 मतलब x will be equal of 3 and y will be equal of 4 lies on the graph of the equation 3y. ये कोई एक इक्वेशन दी है 3y equal to ax plus 7. We have to find the value of a where the x will be equal of 3 and y will be equal of 4. तो हमने क्या करा, हमने x की प्लेस पे 3 और y की प्लेस पे 4 पुट कर दिया. सो 3 into 4 equal to a into 3 plus 7, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, positive convert into the form of negative, then we getting plus minus will be equal of 5. ये इसके into में सामना लेके divide में a will be equal of 5/. Student, now we taking the another question number 4 of the exercise number 4.3 from the linear equation in two variable. The demand of question: the taxi fare in a city, word problem है, आराम समझेंगे, is as follows. For the first kilometer the fare is the 8 rupees and for the sequence distance it is the 5 rupees. क्या होता है इस सेंटेंस का मतलब, मैं आपको समझाता हूँ. मान लीजिए मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, तो सर हमने ये डिसाइड कर लिया है कि कम से कम 1 किलोमीटर, जो शुरुआत का 1 किलोमीटर रहेगा उसका रेट 8 रुपीज़ लगेगा. उसके बाद ठीक है, अब जितना भी किलोमीटर हमसे चलवाओगे उसका रेट हम 5 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज लेंगे. समझे? ठीक है, मतलब ये एक गवर्नमेंट का रूल है कि जो टैक्सी जो बिल्कुल इनिशियल टाइम में फर्स्ट किलोमीटर चलेगी उसका चार्ज कितना लगेगा, 8 रुपीज़. ठीक है, और जितना भी एक्स्ट्रा किलोमीटर आप चलवाओगे उसका 5 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज लगेगा. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द क्वेश्चन, नाउ taking the distance covered by the x kilometer, according to the question the total distance will be equal of x kilometer. How much? टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ x किलोमीटर. तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर हो चुका है. अगर जो मैं आपसे बोलूँ कि ये जो रोड है ये 10 किलोमीटर्स का है और इतना पार्ट 2 किलोमीटर है, तो आप बोलेंगे सर बचा हुआ कितना, 10 - 2 इक्वल टू x. मतलब कहीं ना कहीं ये टोटल the total length of road will be equal of x kilometer and this part will be equal of 1 kilometer. That means remaining part will be equal of x minus 1 kilometer. Yes or no? और कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एक और बात बोलिए, टोटल फेयर मतलब टोटल अमाउंट विल बी इक्वल ऑफ y रुपीज. स्टूडेंट ध्यान सुनिए,
लेट वी कंसिडर ए बी इज अ स्ट्रेट रोड। मैं आपको समझा रहा हूँ, मान लीजिए ये जो रोड है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, x किलोमीटर। ये जो फर्स्ट 1 किलोमीटर रहा है उसका भाड़ा मतलब रेंट कितना हो गया, 8 रुपीज़। कितना हो गया, 8 रुपीज़। और इसके बाद वो जितना भी चलेगा टोटल x, ये 1 किलोमीटर मतलब बचा हुआ कितना हो गया, x माइनस 1 किलोमीटर, उसका चार्ज कितना होगा, 5 किलोमीटर। और जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट विल बी इक्वल ऑफ, टोटल अमाउंट विल बी इक्वल ऑफ y रुपीज़। आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात करता हूँ। मान लीजिए आप किराने की शॉप पे जा रहे हैं, आपने वहाँ पर आटा और चावल लिया है। आटा, ठीक है, और क्या लिया है, चावल। मैंने बोला आटा जो है वो 5 रुपीज़ पर केजी है और चावल जो है वो 8 रुपीज़ पर केजी है। तो आप मुझसे बोलेंगे सर कितना आटा है, 5 किलो, तो 5 का इंटू करेंगे, कितना चावल है, जितना भी है उसमें आप चावल का मतलब ये जितना भी है, जितना किलो है उसमें उसका रेट होगा और दोनों को क्या कर देंगे, प्लस। तो ये मेरा टोटल बिल जनरेट होगा। बराबर बात है। जो हमारी आटे की क्वांटिटी उसमें आटे का रेट मल्टीप्लाई होगा, जो चावल की क्वांटिटी उसमें चावल का रेट मल्टीप्लाई होगा, और दोनों को प्लस करेंगे तो हम टोटल रेट पता चल जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हमारी टैक्सी बिल्कुल शुरुआत में जो 1 किलोमीटर है वो 8 रुपये के भाव से चलेगी, तो 1 इंटू 8, और बचा हुआ किलोमीटर दैट मीन्स x माइनस 1 किस रेट से चलाएंगे, 5 का इंटू करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल किसके बराबर आ जाएगा, y रुपीज़ के बराबर आ जाएगा। तो मैं कहीं ना कहीं ये लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेंटेंस, मतलब कहीं ना कहीं बिल्कुल शुरुआत का 1 किलोमीटर 8 रुपीज़ के रेट में चलेगा और x माइनस 1 किलोमीटर 5 रुपीज़ के रेट में चलेगा, और टोटल अमाउंट विल बी इक्वल ऑफ y रुपीज़। ध्यान से देखिए, अगर जो आपको ये लाइन समझ आई हो तो ही आप आगे बढ़िएगा। ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये बोला है कि इनिशियल 1 किलोमीटर बाय द रेट ऑफ द 8 किलोमीटर एंड अ पार्ट ऑफ द 1 किलोमीटर बाय द रेट ऑफ द 5 किलोमीटर। मतलब बिल्कुल शुरुआत का 1 किलोमीटर 8 रुपये के भाव से चलेंगे और बचा हुआ टोटल डिस्टेंस 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के भाव से चलेगा। तो मतलब इसमें इतने का मल्टीप्लाई होगा और 1 किलोमीटर में 8 का मल्टीप्लाई होगा, और दोनों रेट को प्लस करूंगा, तो टोटल अमाउंट मतलब y रुपीज़ के इक्वल होगा। नाउ वी गेटिंग 8 1 जा 8, ठीक है, 5 का x में इंटू तो 5x, 5 का 1 में इंटू तो 5 विल बी इक्वल ऑफ y, सच दैट प्लस माइनस माइनस दैट मीन्स 3 प्लस 5x विल बी इक्वल ऑफ y। ये आपको लाइन समझ आ रही है सर, प्लस माइनस माइनस दैट मीन्स 3 विल बी इक्वल 3 प्लस 5x विल बी इक्वल ऑफ y, या मैं इसको बोल सकता हूँ y इक्वल टू 5x प्लस 3। आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर से देखिए, यहाँ पर हमको दो चीज बोली है। ठीक है, ठीक है, क्या निकालना हमको, राइट अ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट वन इज द लीनियर इक्वेशन एंड सेकंड वन इज द ड्रॉ अ ग्राफ। तो हमने कहीं ना कहीं लीनियर इक्वेशन को ड्राइव करा। फिर से समझिए, द टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ x किलोमीटर। ये जो हिस्सा है ये 1 किलोमीटर है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, x माइनस 1 किलोमीटर। ठीक है, फर्स्ट 1 किलोमीटर का चार्ज कितना वो ले रहा है, 8 रुपीज़ पर किलोमीटर, और ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसका चार्ज कितना है, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक टोटल टैक्सी का रेंट कितना है, y रुपीज़। तो मैं टोटल कैसे निकालूंगा, फर्स्ट 1 किलोमीटर चल रहा है 8 रुपीज़ के हिसाब से, और बचा हुआ x माइनस 1 किलोमीटर बाई यूज ऑफ द 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो मैंने इस इक्वेशन में दोनों, पहले ये 1 किलोमीटर का हिसाब है और ये बचे हुए किलोमीटर का हिसाब है, दोनों को प्लस करा तो टोटल चार्ज y के इक्विवेलेंट आया है। 8 1 जा 8, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। सर मुझे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द लीनियर इक्वेशन, दैट मीन्स y विल बी इक्वल ऑफ 5x प्लस 3। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अगर जो हम आगे की तरफ चले, मतलब हमको ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखना है, ग्राफ। ठीक है, फॉर द प्लॉट ऑफ ग्राफ वी हैव, हमको कम से कम 3 to 5 वैल्यूज की जरूरत होती है। y विल बी इक्वल ऑफ 5x प्लस 3। स्टेप नंबर 1,
5 equal to 5x plus 3, we have to put 0, x will be equal of 0. Y equal to 5 into 0 plus 3, that means 0 plus 3 will be equal of 3. Step number 2 student, ठीक है, अगेन y इक्वल टू 5x प्लस 3, वी हैव टू पुट x विल बी इक्वल ऑफ 1, 5 इंटू 1 प्लस 3, 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 विल बी इक्वल ऑफ 8. मतलब कहीं ना कहीं हमें दो वैल्यू मिल चुकी है. एक आप देखिए मैंने जैसे 0 पुट करा सर, मैंने आपको पहले भी बताया है, वी कैन चूज एनी 5 वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी पुट कीजिए. तो मैंने एक बार कितना पुट करा है स्टूडेंट, x विल बी इक्वल ऑफ 0, और एक बार पुट कर रहा हूँ x विल बी इक्वल ऑफ 1. देन y इक्वल टू 5x प्लस 3, स्टेप नंबर थर्ड, x विल बी इक्वल ऑफ -1. So y will be equal of 5 minus 1 plus 3. तो y equal to -5 plus 3 such that positive negative plus minus we getting the -2. ठीक है. Then after step number 4, x will be equal of -2. So y equal to 5 into -2 plus 3 minus 10 plus 3 plus minus, then y will be equal of -7. स्टूडेंट हमने देखो 0 पुट करा है, हमने 1 पुट करा है, हमने -1 पुट करा है, -2 पुट करा है. एक और ले लेते हैं. स्टेप नंबर 5, वी हैव टू पुट y इक्वल टू 5x प्लस 3, x विल बी इक्वल ऑफ -1 -2 ऑलरेडी हो चुका है. नाउ वी पुट द -3, y will be equal of -3 plus 3, that means -15 plus 3, y will be equal of -12. स्टूडेंट देखिए ये जो वैल्यू है -12 काफ़ी बड़ी है. ठीक है, तो हमको यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू को रखना चाहिए जिससे वो थोड़ा सा सिंपल हो, बट हमने अगर ये पुट कर दिया है तो अब इनसे हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे. क्वेश्चन फिर से देखिए, एक टैक्सी है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. हमको यहाँ पर दो चीज़ बनानी थी. फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द लीनियर इक्वेशन, एंड सेकेंड वन, ठीक है, ग्राफ. फॉर द लीनियर इक्वेशन 1 into 8 plus x minus 1 into 5 will be equal of y such that 8 plus 5x minus 5 equal to y. ठीक है, 5x plus minus we getting the 8 minus 5 will be equal of 3. 3 plus 5x equal to y, that means y will be equal of 5x plus 3. Example of the linear equation. Now for the graphical representation we choose any 5 values of the corresponding, that means RHS में जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू को रखना है. एक बार हम x की प्लेस पे 0 1 2 3 4 5 प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हैं. तो मैंने एक बार चूज करा, x विल बी इक्वल ऑफ 0, देन x विल बी इक्वल ऑफ 1, x विल बी इक्वल ऑफ -1, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3. Then we getting the values y equal to 3, y equal to 8, y equal to -2, y equal to -7 and y equal to -12. Now time to represent a graph. Student, now last part of question, graphical representation. We getting the values corresponding x equal to 0, y equal to 3, x equal to 1, y equal to 8, x equal to -1, y equal to -2. अभी हमने ये देखा है. अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं. इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी यूज्ड आर टू perpendicular lines. First one is the horizontal and second one is the vertical. In the case of the horizontal, we consider the positive x-axis and negative x-axis, that means the x and x dash. In the case of the vertical line, consider the y-axis and negative y-axis, that means a positive y-axis and negative y-axis. And intersecting point are named origin. Student, मुझे y एक्सिस पे -12 तक जाना है. ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, वी गेटिंग द फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Another side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, फ्रॉम द पॉजिटिव वाई एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. नेगेटिव वाई एक्सिस कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
and 12, 13 and so on. Student, for the first value 0, 3, what is the mean by the 0, 3? The x will be equal of 0 and y will be equal of 3. x will be equal of 0, इसको हम नहीं देखेंगे. We getting the y will be equal of 3. That means 1, 2, 3. Here we getting 0, 3. Next value 1, 8. What is the mean of the 1, 8? That means x will be equal of positive 1 and y will be equal of positive 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो मुझे यहाँ पर पॉइंट मिलेगा लगभग. देखिए कितना पॉइंट मिलेगा, 1, 8. नाउ थर्ड पॉइंट, वेयर इज द थर्ड पॉइंट स्टूडेंट? -1, -2. दैट मीन्स x इक्वल टू -1 and y equals to -2. Then we getting another point -1, -2. स्टूडेंट, हमको जब ये पॉइंट मिलेगा तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. बट मैं ठीक है इतनी सारी परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है. देखिए आप बाय यूज ऑफ द स्केल यू कैन ड्रॉ अ सिंगल परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम between the 2 points. Now we take the another point -2, -7. That means x will be equal of -2. Where is the -2? Negative sign. We getting the -2 and y will be equal of -7. -2. That means these and -7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then we getting the intersecting point naming -2, -7. -2, -7. Next one student, -3, -12. -3 that means x -3 and y -12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. That means we getting the intersecting point between the line naming -3, -12. स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, जैसा कि हमने लीनियर इक्वेशन बनी थी बाय यूज ऑफ द लीनियर इक्वेशन. क्या लीनियर इक्वेशन थी आपको याद है क्या? देखिए जो भी लीनियर इक्वेशन थी उसकी मदद से हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स निकाले थे. वी पुट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द एक्स में भी 0, 1, -1, -2, -3, -4, +1, +2. आप कुछ भी पुट कीजिए. सर हाउ मेनी वैल्यूज, कितनी वैल्यूज निकालनी चाहिए? एटलीस्ट कम से कम 2 वैल्यू और मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन यू. तो हमने ये सारी वैल्यूज को निकाल लिया है बाय यूज ऑफ द 0, 3 गेटिंग द पॉइंट 0, 3. देन आफ्टर ठीक है, देन आफ्टर 1, 8 सेकेंड पॉइंट, देन -1, -2, फाइनली -2, -7 एंड लास्ट वन -3, -12. अब इसके बाद क्या करेंगे? ठीक है, बाय यूज ऑफ द स्केल एंड पेंसिल यू ड्रॉ अ सिंपल स्ट्रेट लाइन. एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ठीक है जो कि सभी पॉइंट को टच करते हुए जाएगी और बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी. दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 4.3. व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन? सबसे पहले हमको एक लीनियर इक्वेशन बनानी थी. हमने लीनियर इक्वेशन के लिए करा है फर्स्ट किलोमीटर इंटू 8 प्लस रिमाइनिंग किलोमीटर इंटू 5 will be equal of total amount such that 8 plus 5x minus 5 equal to y, such that plus minus 3 plus 5x will be equal of y, such that y equal to 5x plus 3. ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट सॉल्यूशन था. दैट मीन्स अ लीनियर इक्वेशन बाय यूज ऑफ द वैल्यूज ऑफ द x की वैल्यू पुट करी 0, 1, -1, -2, -3. देन वी गेटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द y जस्ट लाइक 3, 8, -2, -7 एंड -12. बाय यूज ऑफ दिस कोऑर्डिनेट वी कैन ड्रॉ a graphical representation of straight line y equal to 5x plus 3. ये जो इक्वेशन है इसको आप इस पूरे ग्राफ स्ट्रेट लाइन में कहीं पर भी डिपेंड्स ऑन यू कहीं पर भी लिख देंगे. दैट इज अ फाइनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. Student, now we taking the another question number 6, another word problem. If the work done, what is the mean of the work done? Let work done will be equal of W. Let the work done will be equal of W if the work done by a body on application of the constant force. What is the mean of the constant
will be equal of force and force represented by F is directly proportional to the distance. तो तीसरा वर्ड मिला मुझे, distance will be equal of capital A such that by the first two lines the work done is directly proportional of distance. distance को आप A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू. सो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस. Proportional replaced by any constant capital F such that we getting the equation W will be equal of F into D. इतना आपको समझ आया क्या? This in the form of the equation in two variable and draw the graph. मतलब what is the demand of the question? मुझे एक तो ग्राफ बनाना है, ठीक है, कब? ठीक है, यहाँ पर फोर्स विल बी इक्वल ऑफ 5 यूनिट. तो ध्यान से देखिए, फोर्स विल बी इक्वल ऑफ 5 यूनिट such that student W equal to 5 into D. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. फिर से देखिए क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर आपको बोला इफ द वर्क डन ऑफ द बॉडी on application of the constant force, that means a work done will be equal of W, constant that means a force will be equal of F and displacement will be equal of D. तो इस क्वेश्चन में बोला है work done is a directly proportional of displacement, that means a W is a directly proportional D. proportional convert into the form of equal, proportional हटता तो एक constant use करेंगे and constant will be equal of force, so represented by force, but force will be equal of 5 unit. student, now time to represent a graph. ठीक है, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है, वी नो दैट W इक्वल टू 5D. स्टेप नंबर फर्स्ट, व्हेन डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल ऑफ 0 such that W equal to 5 into 0, W will be equal of 0. Step number 2, student, in the case of the step number 2 we have to put displacement will be equal of 1 unit. कितना ले रहा हूँ मैं? 1. W equal to 5 into 1, W equal to 5 unit. And last one, step number 3, D will be equal of 2 unit. देखिए सर, मुझे यहाँ पर कंडीशन दी है 0 और 2 यूनिट के बीच में मुझे टोटल डिस्टेंस बताना है. मतलब मुझे ये बताना है कि जब ये 0 यूनिट पर है और ये 2 यूनिट पर है तो इनके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है. बाय यूज ऑफ द ग्राफिकल मेथड वी हैव टू पुट D इक्वल टू 2 यूनिट, W इक्वल टू 5 इंटू 2, दैट मीन्स 10. ठीक है, आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमको ये बोला है वर्क डन इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वर्क डन इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. तो हमने सबसे पहले लिख दिया वर्क डन इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस. प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो मन से कांस्टेंट, एंड हियर कांस्टेंट विल बी इक्वल ऑफ फोर्स. सो कांस्टेंट represented by the force, but force will be equal of 5 units such that W equal to 5D. Now for the graphical representation 0 और 2 के बीच में डिस्टेंस लेना है. तो मैंने 0 और 2 दैट इज अ कंपल्सरी सिचुएशन. मैंने मन से एक और पॉइंट ले लिया 1 बाय यूज. तो D इक्वल टू 0 रखा, देन W इक्वल टू 0, D इक्वल टू 1, देन W इक्वल टू 5 एंड D इक्वल टू 2, दैट मीन्स W इक्वल टू 10. नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. Student, now graphical representation between the values of the W and D. Now firstly, in the graphical representation we used two perpendicular line. First one is the horizontal and second one is the vertical. That is the horizontal and this is a vertical line. Intersecting point are known as the origin. Student, we calculate 1 2 3 4 positive 1 2 3 4 positive x-axis, 1 2 3 4 negative x-axis -4 -3 -2 -1, and again 1 2 3 4. That means 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 y dash. Student, now
टाइम टू कैलकुलेट अ डिस्टेंस बिटवीन 0 यूनिट एंड 2 यूनिट। सबसे पहले देखिए 0 0, व्हाट इज द मीन ऑफ 0 0? दैट मीन्स अ ओरिजिन रिप्रेजेंटिंग 0, 0। सेकेंड वन w इक्वल टू 5 एंड ये देखिए सर, ये जो वैल्यू है ये x और ये जो वैल्यू है वो y को रिप्रेजेंट कर रही है। आप बात समझे, हर बार मैं यहाँ x और यहाँ पर y लिखता हूँ, दैट मीन्स ये x और ये y है, तो 5,1 5,1, ठीक है, 5,1 ये रहा हमारे लिए 5। देखिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये 5 है और ये कितना है 1। देन वी गेटिंग द सेकेंड पॉइंट 5,1 एंड लास्ट वन 10,2। तो इन द केस ऑफ द 10 हमको ये थोड़ा सा और बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, 5, देन 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 पॉजिटिव x एक्सिस। देखिए x will be equal of 10 and y equal to 2, that means here is 2 and here is 10, so we naming 10, 2. Student, by use of the scale and pencil we simply draw a straight line, ठीक है, a distance ये जो है ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो भी हमको क्वेश्चन दिया था, अ रिलेशन बिटवीन द वर्क डन एंड डिस्प्लेसमेंट 0 0 5 1 एंड 10 2 रिप्रेजेंट अ सिंपल स्ट्रेट लाइन बाय यूज ऑफ द ग्राफ। आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। I am Asim Kumar Mandal as a representative, Santipani Higher Secondary School, Rajudha. Thank you so much for watching this YouTube channel. Like and subscribe, please.